Good morning students, how are you? I hope you all are safe at your home. Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School. Students, in the last week PDF, I have sent you the explanation part of the poem Back to School. Today and along with that I send you question answer PDF too. Now today I would like to continue the further part. Today we are going to do page number 13 of your textbook, textual exercise 8. In that, first question is make the following sentences negative. Now students, first let me explain you the types of sentences. There are 5 types of sentences. These are the 5 types of sentences. First is assertive sentence, second is imperative, third is interrogative, fourth is exclamatory, and fifth is affirmative and negative. Now, students, assertive sentences are simple statements. Assertive sentences are simple statements which we use for declaration. Okay, means for example the simple word, simple language जिसमें आप बात करते हो इंग्लिश में, how are you, where are you going, my father is in the office or something. These are the simple sentences we use. Okay, now second type of sentence is imperative sentence. Imperative sentence consists of two parts. One is order, or you can say command, and the other thing is request. See, imperative sentence दो parts में divide है. एक तो है order और दूसरा है request. Order means if I say example, close the door, means this is the sentence where I am giving you an order. क्या please close the door, दरवाजा बंद कर दो. ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, कमांड कर रही हूँ. क्या you have to close the door, जाकर दरवाजा बंद कर दो. ओके, और इसमें ही एक अलग दूसरा टाइप है, प्लीज गिव मी अ पेन. ओके, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज गिव मी अ पेन. ओके, तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स आते हैं, एक तो है ऑर्डर और कमांड और दूसरा है रिक्वेस्ट. आई हैव गिवन यू दिस टू एग्जांपल्स. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. ओके, नाउ थर्ड इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें हम क्वेश्चन मार्क, whom, why, what, वो जो sentences होते हैं that are called interrogative sentences. जैसे what is your name? If I ask you student what is your name, where do you live, how much do you earn, where are you staying, what did you do last night? So these are all interrogative sentences. Now fourth one is the exclamatory sentence, which is having this exclamation mark. Exclamatory sentences are very easy to identify. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बहुत इजी से पहचान सकते हैं जिसके अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज इट स्टार्ट विद व्हाट, whom, why, like that, and it's end with the question mark. Okay, so I hope you might have understood this fourth one. Now fifth one is the affirmative or negative. Affirmative and negative, these are the special two types of sentences which you have to keep in your mind and it will be useful till your 12th standard. So इसका concept आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरह बिठा लेना है. Okay?
नाउ स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स हमको ये सेंटेंस के हमको अंदर हमको क्या ऐड करना है? नो, नॉट, नेवर, नाइदर, none, nobody, nothing. These words are added if you want to make the sentence negative. अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो उसका मतलब हमको ये वर्ड्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं. बट हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब हम ये सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ये वर्ड यूज करते हैं, हमको वो देखना है कि जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए. डिड यू फॉलो? आपको सेंटेंस चेंज करना है, उसमें नो, नॉट लगाना है, बट एट द सेम टाइम ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, आई विल शो यू. जैसे ये एग्जांपल लिखा है, द क्रो इज ब्लैक. ओके, सबको पता है क्रो कौन से कलर का है स्टूडेंट्स? इट इज ब्लैक इन कलर. अगर हम लोग इसको नेगेटिव अगर हम ऐसे लिखते हैं, द क्रो इज नॉट ब्लैक, तो ये तो रॉन्ग हो गया. यस और नो? ये रॉन्ग हो गया. द क्रो इज नॉट ब्लैक, तो ये रॉन्ग हो गया. आपने नॉट तो यूज किया है, बट अगर आप नॉट लगा रहे हो तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या है? द क्रो इज नॉट ब्लैक, तो कौवा काला नहीं है. बट सबको मालूम है कि कौवे का कलर कौन सा होता है? काला. तो इसका मतलब आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है. तो अब हमको क्या करना है? हमको इसमें नॉट तो लगाना है, बट इसका मीनिंग नहीं चेंज करना है. तो अभी हम इसके लिए हम लोग ऑपोजिट वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. तो हम लोग क्या लिखेंगे? द स्वान इज वाइट. इसका मतलब क्या? स्वान यानी जो हंस होता है. तो हंस कौन से कलर का है? सबको पता है कौन से कलर का होता है? वाइट. द स्वान इज वाइट, इट मीन्स द क्रो इज नॉट ब्लैक. तो उसका मतलब वही हो गया. ओके, नाउ वी विल डू द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. ओके, टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अभी. आपको यहाँ पर देखना है. ओके, जैसे फर्स्ट वन है क्लोज द डोर. ओके, क्लोज द डोर. अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? हमको इसको नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव मतलब मैंने आपको बोला था इसमें नो, नॉट, नेवर वो सब वर्ड यूज कर सकते हैं. तो अब हमको इसमें नेगेटिव वर्ड डालना है, बट ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. तो क्लोज द डोर, इसके आंसर में क्या लिखेंगे? क्लोज द डोर. डोंट ओपन द डोर, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज द डोर. ओके, तो हमने इसमें नॉट, डोंट का मतलब क्या होता है? डू प्लस नॉट, तो इसको क्या बोलते हैं? डोंट शॉर्टकट में. ओके, डू नॉट. ओके, समझ में आया? तो डू नॉट ओपन द डोर, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? क्लोज द डोर. तो दोनों का मीनिंग सेम है. इसमें नॉट भी आ गया और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ. तो मुझे I expect कि you might have followed the concept of how to make the following sentences negative. तो आज जो मैं वर्कशीट भेज रही हूँ उसमें मैंने ये एक्सरसाइज पूरा भेजा है विद द आंसर्स. मैंने सॉल्व करके ही दिया है, बट मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. आई होप यू माइट हैव फॉलोड. अब इसके बाद ही है जो एक्सरसाइज बी है, वो मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव. ये जो सेंटेंस है आपको इंट्रोगेटिव यानी उसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, ही हैज 2 ब्रदर्स. इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको. ही हैज 2 ब्रदर्स. ओके, दिस इज द आंसर. ये क्या है? ये आंसर है. अब इनको क्या करना है? इसका क्वेश्चन हमको बनाना है. फ्रेम अ क्वेश्चन. तो हम उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ओके, हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है. ये आंसर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ही हैज 2 ब्रदर्स. ये आंसर है, तो इसका क्वेश्चन
हम कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैव। तो उसका आंसर क्या होगा? ही हैव 2 ब्रदर्स। समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है? ये भी मैंने जो एक्सरसाइज दी है वो भी मैंने पीडीएफ के अंदर आपको भेज रही हूँ, उसके साथ आपको आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये उसमें आपको टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है। कहाँ करना है? इन टेक्स्ट बुक। यू हैव टू डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक। ओके स्टूडेंट्स? So I hope students you might have followed the concept properly. So this is all you have to do in your textbook, page number 13, exercise A and exercise B. मैंने आपको इसका PDF भी भेजा है with the answer keys. Okay, this is all for the day. I am Mrs. Poonam Sharma signing off from the Radiant International School. Meet you all next week with the new videos. Till then, goodbye and stay safe at your home.